Indian style particularly, because the South Indian style has got an entirely different approach, and that is not my area of expertise. So I'll be strictly focusing on Hindustani classical music. And in order to begin the entire concept, we will first have to discuss notes. And once we discuss the notes that are there, that we use in order to create music and in order to express the different forms of music in the Indian system, we will move on to a small discussion regarding the rhythm as well. So, as you know, we will have rhythm and we will have melody, and these two will come together to generate musical dimensions. So, first of all, let me try and understand whether all of you are aware of all the 12 musical notes that are there, or you require me to first demonstrate that and then move on to things. So, how many of you are completely new to music, and how many of you already know a bit of it? Okay, Kushagra is saying we know. That's good. Aditi is saying she knows. Very good. Hello, sir. Sir, good evening. Good evening. Sir, I am a new beginner of music. Okay, so do you know all the 12 notes? No, sir. Okay, you do not know. Okay, how many others don't know? Okay, I am getting quite a few replies which are saying they don't know. All right. So I will, in order to make it possible for, okay, fine. Because not everybody knows. There are many people who are unaware of all the 12 notes. I will start from the very beginning. Okay, I will give you the 12 notes. Those who already know, don't bother about it. It will take me just about 5 minutes to finish this. So those of you who do not know what the notes are, Sir, there are excuse me. 12. Yes, who's this? Sir, Dev Joli. Yes, tell me. Sir, how much is one hour duration course is there still? Yeah, today I'll be doing about 45 minutes to 1 hour, anything between that. Okay. 45 minutes or 1 hour? Anything between 45 minutes and 1 hour. That's what I will be keeping it. Okay. Okay, okay, sir. Okay. So just to keep it very short, because many of you already know the 12 notes, I will just make it possible for the others. Everything begins with the first note, sa, which we represent. If we have to write it in Hindi or Bengali or any of the regional languages, we normally write a sa with an akar. And then we have the re. I'll first talk about the shuddh notes, and then I'll talk about the vikrit notes. As for beginners, you should know that there are shuddh notes and vikrit notes. 7 shuddh notes and 5 vikrit notes. Shuddh notes or pure notes are sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. This much everybody should know. And the Vikrit notes are basically the 4 Komal variants of Re, Ga, Dha, Ni, and 1 Tivra variant of Ma. Okay. So the fourth note Ma has got a strange, uh, character, because for everything else, we have got one step down, which is a Komal. By one step down, I mean one semitone below the pure note. So if we have Sa, Re, the Komal version of Re would be Sa, Re. So as you can understand, the pitch gets slightly lowered. And this lowered pitch is basically halfway between the Sa and the Re. Okay, so if you are playing any reed instrument like the harmonium or the keyboard, or anything, the melodica, whatever you're playing, it is basically a semitone. Yes, half note, full note, whole note. These are all misnomers. I would rather stick to the standard, classical nomenclature of things, which is basically a tone and a semitone. A sa to re is a tone, whereas a sa to komal re or a komal re to a re is a semitone. A sa to re is a tone. Okay, so re to ga is also a tone, whereas anything in between, re to komal ga or komal ga to ga, that is a semitone in interval. These are called intervals. So if I ask you what is a fourth interval, you would say sa to ma, basically 4 notes, 4 tones, not semitones in this case. Okay. So in order of precedence, if we go from lowest pitch to highest pitch, you will see that basically we have got sa, then we have a komal re. Like I said, there are 4 komal notes: sa,
Komal Re, Re, Komal Ga, Ma, Tivrama, Pa, Dha, Pa, Komal Dha, Komal Ni, and then the Haisa. Anybody who has learned how to write this would know that there are 2 or 3 ways of doing it. There are certain schools of thought which write it in one way, certain schools of thought which write it in another way. There's no right or wrong. If we have to write it in English, there's a bit of a problem because initially these were all written in Sanskrit. Later on, people started writing it in regional Indian languages like Hindi, Bengali, and all that. But when we started writing it in English, as you would, anybody writing in, yes, shorthand, somebody mentioned shorthand. That is also a system. In Bengal, we have the Rabindranath system of writing notation, which is a little different from the standard classical notation. I will stick to writing it in English because here we have got people from different language backgrounds. So somebody tried to say something, I lost him. Anyway, so I will just stick to the basic idea of writing Komals by underlining the note. So we will follow this system where we are writing capital letters, uppercase for all the notes. Capital S is Sa, capital R is Re, similar with Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, everything. This is the Bhattkhande notation system, the standard system, which is followed all over the world. Some people write a small letter R for a Komal Re, a small letter Ga for G for a Komal Ga, but I prefer the Bhattkhande system where we underline a note. If it is Komal, we just underline it. So we'll write a capital R, underline it, it means Komal Re. Capital G, underline it, Komal Ga. In case of Ma, because it is one step up, we use a vertical dash sort of a mark. So it is like one stick standing on top of Ma, M. So we write a capital M, we put a small vertical dash on top of it in order to denote this as Tivrama. Yes, somebody, Pragati, is writing Ma followed by an apostrophe. Because there is no symbol on the keyboard which can do that vertical dash on top. This is also available when we are typing as, an inverted comma sort of a thing. And the next thing that you need to learn is how to represent the octaves. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have a class on 5:40, so can I leave the class at 5:40? Yeah, sure. That is your prerogative. Don't worry. Okay, so coming back to representing octaves, there we use small dots, or some people use a small circle, like we use in case of a degree. So we would do that exactly on top of a note. Exactly on top of Re, if we put a small circle or a dot, it represents Re in the upper octave, which is exactly the double frequency of whatever it was in your present octave. So if your frequency, for example, is like 420 hertz, then you go exactly double of that and you get 840 hertz and you get the next Re in the next octave. Okay, that is how octaves are created. Frequencies are doubled or frequencies are halved. All right. Next, let's move on to the first concept of Indian classical, where we have got the idea of ragas. What is a rag? Anybody who can explain what a rag is? Yes, I will continue with thoughts, definitely. Anybody can switch on the microphone and explain what a rag is? Kunjal? No, sir. Okay. Can I try? I'm Maitri. Yes, please try. So a rag is a composition of the 7 swaras in a combination that the rag maker wants it to be presented as, where a couple of notes are more prominent and the others, sometimes there might not be 7 swaras also. It could be either 5 swaras or 6 swaras or 7 swaras. So it's a composition in a way that you have a specific manner in which the melodies will run. So that composition is known as a rag. Excellent. What you just explained basically sums up whatever is there to be said about a rag. Let me just add a few more details to it. Basically, a rag is a set of notes which runs in the form of an ascending and the form of a descending first. So a rag is this set of notes
and how these notes come in a form of combination. So these set, for example, you have got 5 notes in ascending and you've got 7 notes in descending. This summation of movement upward and movement downward, along with certain rules as to how to do this movement, whether we add note number 1 and note number 2 directly, or we skip note number 2 and go to note number 3 from 1. These rules are all determined within the theory of a rag. As she mentioned, a rag also has a few prominent notes. Okay, prominent notes are called vadi and samvadi. So vadi is essentially the most prominent note in a rag, whereby we try to frequently visit that note. While performing a rag, we try to frequently hit that note many times, and we also try to stand on that note from time to time in order to determine how important it is, and in order to exhibit that form of how to go to that note from other notes. So there is a combination and a factor of sequencing as to how, for example, let's take one of the simple ragas, and let me play this and give a small demonstration. You will understand. Okay, so I am basically playing a very small snippet from Yaman, and Yaman basically has got sa, re, ga, tivrama, pa, dha, ni, and sa. A lot of people say that it is a sampurn rag. I'm using some technical terms here. Sampurn means that there will be 7 notes in the ascending, 7 notes in the descending. Arohi and Avrohi, or Aroha, Avroha. Some people say Arohan, Avrohan. All these terms are correct. But if you say Arohan, say Avrohan while coming back. Don't say Arohan and Avrohi. That combination is wrong. So follow one system. If you're saying Arohi, Avrohi, maintain that. So in Arohi, there are supposed to be 7 notes. In Avrohi, there are supposed to be 7 notes again. But there are certain ways of movements which we use. So there is a way of performing Yaman, which is followed by more or less all the major gharanas that perform Yaman. And the movement goes from ni re ga ma dha ni sa ni da pa ma ga re sa. So if we do ni re ga ma dha ni sa, we are not doing a straight movement using all the notes sa re ga ma pa dha ni sa, right? Ni re. So we are using ni instead of sa, then going directly to re. We are skipping sa. And ni re ga ma dha. So again we are skipping pa. Then we are moving up. So this is how a rag gets more detailed than a thought. So a rag is something which has got this entire concept of sequencing as to how to progress, which ones to leave, how to order the notes, how to build up the tans, what could be the notes that we create in a small tan in order to make it sound within a rag. So there are all these factors that are involved. Okay, there are quite a few hands that are already being raised. I will take 2 or 3 questions. First one. Whose hand is this? It's raised for some time. Okay. Dave Jolie. Yes, tell me. Sir, I can't understand that ragas or all the things you have said that. Okay. So, Arohi mein kya sura hai? Okay, I will explain this once again. We will take this idea of 7 notes upwards and 7 notes downwards. So it's sampurn, sampurn. Sampurn means 7 notes. Okay. Aurav means 5 notes and Sarav means 6 notes. So Arohi mein agar hum kehte hain ki Sarav hai, that means there are 6 notes in Arohi. And if we say that it's sampurn after we say Arohi, then Avrohi has got 7 notes. So there is a way of writing this. If we write sampurn hyphen sampurn, it means 7 notes while going up, 7 notes while coming down. If we write Sarav sampurn, it means 6 notes while going up and 7 notes while coming down. Okay. Again, we write it as 2 notes separated by a hyphen.
So, and if we write Aurav Sampurn, it means 5 and 7, upwards and downwards. So yes, somebody has already written it. Thank you for writing it down. Get it from the chat. Aurav is 5, Sharav is 6, and Sampurn is 7. So that is the first definition that we give in a rag. What is the Arohi? What is the Avarohi? And what is the nature of the rag in terms of number of notes while going up and number of notes while coming down. Next important thing that we use in a rag is the time. What is the time? There is this old concept, old Indian traditional concept of prahar. A prahar is essentially the idea of dividing the day into 8 segments. Okay, 24 hours divided into 8 segments, which means that we will have 3-hour slots, and the morning slot starts from 6 o'clock, ends at 6 o'clock. So 6 a.m. to 6 p.m. is the morning time, and 6 p.m. to 6 a.m. is known as the night time. So 12 hours, 12 hours. So we will have 4 slots of 3 hours each in the morning, and 4 slots of 12 hours each, of 12 hours total, with 3-hour divisions in the night. So 6 a.m. to 9 a.m. would be 1 slot. So that would be the early morning slot. Then we will have the late morning slot, which will be 9 a.m. to 12 noon. Then we have the early afternoon slot, which is 12 to 3. And then 3 to 6 p.m. would be the evening slot. Okay. And the night slot starts from 6 p.m. to 9 p.m., 9 p.m. to midnight, midnight to 3 a.m., and 3 a.m. to 9. हेलो Yes, Gajanan. सर, प्लीज सर हिंदी में बात कर सकते हैं आप? There are many people who wouldn't understand Hindi. That's why we सर always आप conducted. जो समझा रहे ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, प्लीज हिंदी में बात कीजिए. Does everybody understand Hindi here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, हिंदी Okay. में बोलिए सर, हिंदी में. ओके, ठीक है, कोशिश करता हूँ. तो मैं समय की बात कर रहा था. हर एक राग का एक समय होता है. हाँ जी आपको अगर सर. कोई भी राग गाना है, उसके थ्योरी में आपको मिलेगा कि इसका समय ये है कि दोपहर का राग है, कोई शाम का राग है, कोई रात का राग है. तो उसका एक प्रहर होता है. हमारा जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था, बुजुर्गों ने जब बनाया थे, तो वो कॉन्सेप्ट ये था कि सुबह के 6 बजे से लेके 9 बजे तक जब आप मूव करोगे, नीरज कुमार मधुसूदन, ही इज राइटिंग, ओ माय गॉड, you don't understand Hindi? Okay, I will mix both the languages. Okay, I Yeah. will mix both the languages. So this is the problem which happens when people from different cultural backgrounds join. तो मैं हिंदी में थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ. सर जो मैंने हिंदी इंग्लिश में इंग्लिश आता है, सब 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 समझ में सर. ओके, हाँ, फाइन. मिक्स कर दो हिंदी इंग्लिश. यस यस, ओके. तो अभी रागों का जो सिस्टम है, हर एक राग का एक टाइम होता है. उसका मतलब क्या है? ऐसी बात नहीं है कि सुबह का राग आप कभी रात को गा नहीं सकते. आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन परफॉर्मेंस जब होता है, तब हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर क्लासिकल शो है, तो उसका एक सही समय का सही राग जाके परफॉर्म किया जाए. यही होता आ रहा है बहुत सालों से. और इसका एक रीजन भी है कि राग का जो मूड होता है, उसका जो चलन होता है, उसका जो हर एक नोट का जो एक्सप्रेशन होता है, वो सही टाइम पे अगर लगाया जाए तो उसका मूड सही से निखर के आता है. जैसे आपको अगर भैरव या आहिर भैरव ऐसा कुछ गाना है, तो अर्ली मॉर्निंग आप उसका रियाज करो, आप उसको प्रेजेंट करो, वो ज्यादा बेहतर सुनाई देगा. आप अगर जाके उसको दोपहर को गाओगे तो उसका फील उतना अच्छा नहीं आता है. लेकिन परफॉर्मर के ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट है. मैंने सुना है, अभी राशिद खान जी को मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, वो शाम को बैठ के भैरवी सुना रहे थे. बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि उनका स्किल सेट उतना बेहतर है कि वो जब भी गाए, जो भी राग गाए, राग को बारीकी से प्रेजेंट करते हैं और अच्छे से निखर के आता है. तो इसका उतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कर नहीं सकते. कर सकते हो, लेकिन बेहतर है अगर आप सही समय पे सही चीज करो. तो अभी दूसरी बात पे आते हैं. वो जो प्रहर की बात मैं कर रहा था, जो इंग्लिश में बता रहा था, कुछ बातें छूट गई है, लोगों को समझ में नहीं आया. तो प्रहर, अष्ट प्रहर कहते हैं इसको. सो देयर आर 8 प्रहर्स. 8 प्रहर 3 घंटे का एक एक होता है. तो पूरे दिन को तोड़ा गया है 8 सेक्शंस में. पहला सेक्शन सुबह के 6 बजे से स्टार्ट होता है, और 4 सेक्शंस बाद 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 12 घंटे होने के बाद जब शाम के 6 बजे तक हम लोग पहुंचते हैं, तब तक 4 प्रहर खत्म हो चुके हैं. इसको दिन का प्रहर कहते हैं. तो दिन का जो टाइमिंग है, वो 3 घंटे के
3-3 स्लॉट करके 4 स्लॉट्स खत्म करने के बाद शाम को 6 बजे पे आके खत्म होती है। तब हम लोग जो यमन की बात कर रहे थे, वो शाम को 6 बजे के बाद जब सनसेट हो रही है, तब जाके यमन गाया जाता है। यमन को बहुत एक मधुर राग माना जाता है, तो यमन जब गाया जाए तो मूड बहुत अच्छा है। यमन का वो फील है कि आप नदी के पार बैठो आराम से, एक राग प्रेजेंट करो और शाम का फील लो। वो सनसेट वाली फीलिंग यमन में है। हाँ, अब जब दीप जले आना, वो somebody is writing, माही इज राइटिंग, जब दीप जले आना, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, और वो शाम को गाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो दीप तभी जलाया जाता है, शाम हो चुकी है, दिन ढल रही है, तो इसीलिए लिरिक्स भी ऐसे भी लिखा हुआ है। तो कोई भी यमन का कोई भी अच्छा सा प्रेजेंटेशन ले लो, उसका लिरिक्स ऐसा होता है कि शाम के साथ उसका कोई रिलेशन होता है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस, मूड, ये सब ध्यान में रखते हुए रागों को बनाया गया है। जैसे अर्ली मॉर्निंग अगर आप श्री गाओ, श्री का रंग क्या होता है, हर एक राग का एक कलर सिंबलिज्म भी होता है। कोई कोई कहता है कि राग का एक कलर होता है। तो अभी ये तो जहन में लाना ही बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग ये समझ भी नहीं पाएंगे कि राग गा रहे हो क्या कलर क्या। बहुत लोग इसमें इसको लेके बहुत सारे लोगों का बहुत सारे मतांतर है। लेकिन ये भी सही है कि अगर आप वो अर्ली मॉर्निंग सन का जो कलर होता है, जो ऑरेंज जैसा कलर होता है, वो माना जाता है कि श्री का वो रंग है। तो अभी श्री का अगर आप कुछ भी प्रेजेंटेशन ले लो, श्री का बहुत मेल है पुरिया धनश्री से। तो पुरिया धनश्री अगर आप ले लो, पुरिया धनश्री एक ऐसा राग है जो देर रात को गाया जाता है। तो वो देर रात की राग है, मालकोस देर रात की राग है। तो कुछ भी देर रात की राग ले लो और अर्ली मॉर्निंग का राग ले लो, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी, क्योंकि एक खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। और कुछ कुछ राग ऐसे होते हैं जिसको संधि प्रकाश माना जाता है। संधि प्रकाश मतलब जो दिन के खत्म होने का और शाम के शुरू होने का, या फिर रात के खत्म होने का और दिन के शुरू होने का स्लॉट को ऐसे एक्सप्लेन करता है। तो वो राग संधि प्रकाश अगर है, तो उसमें दिन का भी कुछ मिलेगा आपको, रात का भी कुछ मिलेगा। एक खत्म होने से दूसरा शुरू होता है। तो ये सारे रूल्स राग पे लागू होते हैं, और राग तभी जाके सही मायने पे प्रेजेंट किया जाता है जब सारे ये डिटेल्स आप अपने प्रेजेंटेशन में ला पाओ। अभी जाके रात का दिन का ये सब मैं बता रहा था। तो अभी एक दूसरा सेक्शन में आपको समझाने वाला हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक राग पूर्वांगवादी है कि उत्तरांगवादी है। सर थोड़ा लाउडली लाउड? It's loud enough. मैं तो लाउडेस्ट हूँ अभी, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा वॉल्यूम। I have some of us are very like new to everything. There are people who are perfectly fine. chatting and sharing their knowledge. It's getting confusing because, no offense. Yeah, I agree, but I actually cannot tell anybody to stop writing. So if you want to listen to me, just listen to me. Don't look at the chat because things keep coming on the chat. Okay, so अभी पूर्वांगवादी क्या है, उत्तरांगवादी क्या है? There were prominent notes in rags that I said. Prominent note मतलब वादी और संवादी। जो सबसे important note है वो वादी होता है, जो उसके बाद आता है in terms of importance, उसको हम लोग संवादी कहते हैं। तो वादी और संवादी बार बार उस पे आके रुकना चाहिए, और एक न्यास स्वर नाम का एक चीज होता है जिसपे आके आप ठहर सकते हो, जिसपे आके आप सांस ले सकते हो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम ताने गा रहे हैं, बहुत जल्दी से कुछ तान ले रहे हैं, और एक जगह पे आके सांस फूल गई है। तो हम कैसे आके वहां पे रुकेंगे, कौन से नोट पे आके हम लोग विश्राम लेंगे? वो रेस्टिंग नोट जहाँ पे आके हम लोग आराम से ठहर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा है, सा पे आ जाइए। ज्यादातर रागों में आप सा पे आ जाइए, कोई रोकेगा नहीं आपको, क्योंकि सा आपका वो मदर नोट है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। लेकिन कुछ कुछ रागे ऐसे हैं जहाँ पे सा से माँ इंपॉर्टेंट है, सा से धा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे रागे है। तो लेकिन सिंपल से राग जो है, जो बिगिनर लेवल के राग है, उस पर अगर आपको न्यास स्वर पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि सांस फूल रही है, कहाँ जाके हम लोग रेस्ट ले, तो तान को ऐसे बनाइए कि किसी तरीके से आप सा पे आ जाओ, बेसुरे ना बन के, और सा पे आके आप ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए, सांस वापस आ जाए, फिर तान की बरकत करो। तो अभी ये जो पूर्वांगवादी होते हैं, इसका मतलब ये है कि वादी
फर्स्ट सेक्शन में है। कि एक जो ऑक्टेव है, जो मिडिल ऑक्टेव है, सा से लेकर सा तक, सा रे गा मा एक सेक्शन है। ओके, इसको हम पूर्वांग कहते हैं, एक अंग है। और दूसरा जो अंग है, जो पा धा नी सा ऊपर वाला, तो बीच में से ऊपर के ऑक्टेव के सा तक जो जा रहे हैं, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं उत्तरांगवादी, जो उत्तर की दिशा में ऊपर जा रहा है। तो अभी इस अंग में अगर आपका वादी मिल जाए, जो लेफ्ट के तरफ है, सा से लेकर मा में, तो इसमें अगर वादी आपको मिल जाए तो इसको पूर्वांग वादी कहते हैं। और यहाँ पे एक रूल है, बहुत सारे लोग ये डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राग का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, वरना राग नहीं बनेगा। तो राग का बैलेंस मेंटेन करने के लिए अगर आपको पूर्वांगवादी राग मिला है, जहाँ पे वादी आपका गा है या रे है या फिर आपका सा है, तो आपका जो संवादी है उसको दूसरे अंग में डालना है। मतलब हर एक राग में आप देखिएगा 90% रागों में ये बैलेंस मेंटेन किया गया है। जो मिश्र किस्म के राग है या फिर जो बड़े दिग्गजों ने बाद में बनाए हैं, जैसे कि अली अकबर खान साहब बाद में एक राग बना के गए हैं, कि भीमसेन जोशी जी ने एक राग बना के गए हैं। तो कभी कभार बहुत सारे राग ऑलरेडी है, तो ये लोग कुछ वैरायटी लाने के लिए ये नियम थोड़ा तोड़ के दूसरा कुछ बना के गए। तो सर अभी वन मोर क्वेश्चन प्लीज सर। यस, सर आप कहाँ से बोल रहे हो सर? कहाँ से बोल रहा हूँ? अच्छा, इज दैट रेलिवेंट? आई एम फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता। क्या नाम है जी, सर आपका? हरित्रो चक्रवर्ती, जूम पे लिखा हुआ अच्छा ठीक है सर। है। ओके okay, so let's keep it relevant to the discussion. My whereabouts are not relevant, I think. Anyway, तो अभी जो पूर्वांगवादी राग है, इसमें वादी आपको फर्स्ट हिस्से में मिलेगा, सा से लेकर मा में। या फिर आपका जो उत्तरांगवादी राग है, इसमें वादी आपको सेकंड सेक्शन में मिलेगा, पा से लेकर नी में, इसमें से कुछ मिलेगा। कुछ कुछ राग ऐसे होते हैं जिसके ऊपर वाला सा आपका वादी है, तो वो बहुत ऊंचा गाया जाता है, जिसमें ऊपर के हिस्से में तार सप्तक में ज्यादा ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा होता है। तो राग को कैसे एक्सपैंड किया जाए, आधे घंटे का प्रेजेंटेशन है या 45 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है, तो उसको तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे लेके जाते हैं। तब ये वादी, संवादी, उत्तरांगवादी के पूर्वांगवादी, ये सारा कुछ बहुत मायने रखता है। अब जाते हैं कि राग को कैसे प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन क्लासिकल। कैसे प्रेजेंट करते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज एन आलाप और मुक्तालाप। A lot of people call it मुक्तालाप as well, because initially ध्रुपद हुआ करता था। अभी भी ध्रुपद है, लेकिन ध्रुपद का उतना क्रेज नहीं है जितना ख्याल का है। तो ध्रुपद इनिशियली हमारे क्लासिकल म्यूजिक का बी ऑल एंड एंड ऑल था, वो ध्रुपद ही था। तो उसके बाद ध्रुपद थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर का होता था। ध्रुपद में जो गमक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग गमक होता है। तो ध्रुपद को जैसे गाया जाता था, कुछ कुछ सिंगर्स बाद में आके उसको अलग किस्म से प्रेजेंट करने लगे। और विथ टाइम हमको क्या मिला? ख्याल। ख्याल मतलब इमेजिनेशन, अपना ख्याल। तो बड़े दिग्गज जो थे अर्ली डेज में, हमारे जो गाने बजाने वाले थे, जैसे कि अब्दुल करीम खान साहब या फिर अल्लाह दिया खान साहब, ये सब जो बड़े दिग्गज थे, 4 घराने निखर के आए। बड़े बड़े घराने जो मदर ऑफ ख्याल सिंगिंग कहा जाता है। फर्स्ट घराना था ग्वालियर। तो ग्वालियर घराना, उसमें सारा कुछ जो हमको ख्याल का जो गायकी में मिलता है, सब कुछ वो ग्वालियर घराना से शुरू हुआ। फिर और एक घराना आया, जयपुर अतरौली घराना, फिर किराना घराना था। तो ऐसे बहुत सारे घराने बाद में आए। तो अब फिर आगरा घराना है। तो ये 4 घराने हम जब कहते हैं कि घराने कौन कौन से हैं, मदर घराना ग्वालियर है, और जो 4 पुराने घराने हैं वो किराना है, वो आगरा है और जयपुर है। बाकी जितने भी घराने हैं जो पॉपुलर वाले हैं, कि पटियाला हो गए, कि रामपुर हो गए, तो ये सारे बहुत बढ़िया घराने हैं, लेकिन इतने पुराने नहीं है। तो दे वर नॉट द फाउंडर ऑफ ख्याल। तो ख्याल सिंगिंग जब स्टार्ट हुई थी, तो ये 4 घराने फर्स्ट इनके नाम किए जाते हैं, ग्वालियर फर्स्ट। तो हम जब गाते हैं तब एक चीज देखा जाता है कि फर्स्ट जब आलाप हम लोग करते हैं, आलाप को हम लोग बहुत स्लोली करते हैं। वहां पे ताल का कोई सिस्टम नहीं है, आलाप में ताल नहीं है। तो मुक्त आलाप इसीलिए उसको कहा जाता था। वो ध्रुपद में भी ऐसा ही होता था, लेकिन ध्रुपद का आलाप बहुत लंबा होता है, ख्याल का आलाप उससे छोटा होता है। तो ख्याल में हम लोग जब आलाप करते हैं
कि एक एक नोट अच्छे से लगा के उस पे रुक के उसका प्रॉपर एक्सप्रेशन देके हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो वी असेंड नीचे से लेकर ऊपर तक, फिर वी डिसेंड ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस आरोहण गा दिए और अवरोहण गा दिए आलाप हो गया, ऐसा नहीं है। आलाप में भी एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, Srijit Panikar is not being able to understand anything. Is it because of the language or is it because of your zero background in music? Srijit, what is the problem? The language, are you being able to understand? Sir, Others are being able to understand? Okay, beginner, Yes, bouncer. yes. Okay, सर Srijit, मैं I बताता हूँ, understand. सर मैं hello. बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है सबको कि Yeah. सर हेलो सर। हाँ हाँ बताइए। हाँ सर, जो I'm आप Srijit. बोल रहे हो Sir, ना कोई भी वो थोड़ा, language- कोई बात नहीं सर, मैं बाद में बोलता हूँ। फोटो ये केनो देखा है चिंता करो पाइला 2 मिनट सुनता जी। सर आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आप जो भी सिखा थे मेरे को हर बार समझ आता है, बट सर लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर पिछला सेशन जो था आपका वो थर्ड वाला था, तो मैं वही कंटिन्यू हो रहा है सोच के, इसलिए मेरे को आगे शायद ये वाला सब बाउंसर जा रहा है सर। मेरे को शायद मे अच्छा, बी मैं थर्ड, आपने पिछले सेशन में बताया पहले थर्ड क्लियर हो जाओगे तभी आपका राग में ज्यादा आपको समझ आएगा। आई गेस शायद इसके लिए मेरे को सर नहीं मैं ठाट भी बताऊंगा, आप थोड़ा बने रहिए, मैं बताऊंगा ठाट आज ही बताऊंगा। ठाट आज स्टार्ट करूंगा। ठाट अगर स्टार्ट नहीं, कर दिया तो आप पूरा नोटेशन में घुसना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा बिगिनर लेवल का कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। राग क्या है और ठाट से डिफरेंट क्या है वो बता के मैं ठाट में घुसूंगा, आप बने रहिए, ठीक है। ओके, लेट मी कंटिन्यू प्लीज। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि राग का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे राग गाया जाता है। फर्स्ट थिंग इज आलाप। आलाप के बाद हम लोग घुसते हैं, जब ताल स्टार्ट होता है हम एक विलंबित बंदिश गाते हैं। विलंबित बंदिश या बड़ा ख्याल। बड़ा ख्याल ऐसे स्ट्रक्चर में होता है जहाँ पे ताल बहुत स्लो लिया जाता है। मतलब विलंबित ताल जो होता है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे दूसरे कोई सेशन में, क्योंकि उसका ये एक अलग ही टॉपिक है, इसको मैं बहुत समरी जैसे बता रहा हूँ। विलंबित सेक्शन ऐसा होता है जो 15-20 मिनट्स तक एक गाना गाया जाता है। एक छोटा सा बंदिश है जिसका 2 या 4 लाइन होगा, लेकिन उसको खींच के लंबा करके उसको राग के रूप से ढल के प्रेजेंट किया जाता है, और उसका जो ताल होता है वो ताल में उसको बांध के सही तरीके से बनाया जाता है। तो इसका एक प्री डिटरमिन स्ट्रक्चर है, और ये जो बड़ा ख्याल है, बड़ा ख्याल गाना बहुत मुश्किल है, उतना इजी चीज नहीं है। तो उसको गाने के लिए आपको ताल की समझ होनी बहुत जरूरी है। और ये जो विलंबित एक ताल में बहुत सारे बंदिश होते हैं, विलंबित 3 ताल में होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो ताल है, ताल के मात्रे होते हैं। आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर, सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट टेक इट एज एन इन्फॉर्मेशन। ताल के मात्रे होते हैं, जैसे 16 मात्रा का एक तान है, तो 16 मात्रा को हम लोग लंबा करके एक एक मात्रे को 4-4 मात्रे में तोड़ते हैं। तो एक जब टूट के 4 मात्रे बन गए तो इसका काउंटिंग क्या हो गया, 1 बिकम्स 4, तो 16 बिकम्स 64, 12 बिकम्स 48। तो ऐसे इंटू 4 हो जाता है। मतलब एक एक को माइक्रो बीट्स में ब्रेक करके, देयर वाज अ वेरी नाइस कमेंट हियर, समबडी रोट माइक्रो बीट्स। तो ये माइक्रो बीट्स, एक बीट को 4 बीट पे हम लोग तोड़ रहे हैं, तो उसको तोड़ के 4 सेक्शन में ब्रेक करके ऐसे लंबा करके 12 बिकम्स 48, 16 बिकम्स 64, ऐसा करके एक स्ट्रक्चर में हम लोग गाना गाते हैं। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन्स, आई एम नॉट बीइंग एबल टू कंटिन्यू। हेलो, यस, मैं सुमिता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। नहीं, सॉरी, अभी हल्दिया पे हूँ मैं, कोलकाता में रहती हूँ। मैं हम्म। बोल रही हूँ कि आपका कॉल नंबर मिल सकता है? वो मैं चैट सेक्शन में लास्टली दे सकता हूँ। वो फ्रंट रो से आप थोड़ा मांग लीजिए, ठीक है। फ्रंट रो एडमिनिस्ट्रेटर, प्लीज डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट दिस। Yep. You can contact me. I'll give you my contact number. And please ask your doubts at the end of the session. Otherwise, it won't be, continued in a smooth way. एग्जैक्टली। ओके, थैंक्स। तो अभी
इसके बाद जब वो बड़ा ख्याल खत्म होता है उसके बाद हम लोग छोटा ख्याल करते हैं या फिर द्रुत बंदिश। तो जनरली इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग और अ डिफरेंट बंदिश। अ बंदिश इज जस्ट अ कॉम्पोजिशन। अ बंदिश मतलब क्या है, एक छोटा सा गाना होता है जिसको राग पे बनाया जाता है, और उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसको उसकी बढ़कत के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका उसका बोल तान करते हैं। तो बहुत तरीके हैं इसको करने का, वो बाद में हम लोग डिटेल में बताएंगे। तो उसको लंबा खींचा जा सकता है। तो एक गाना जो हम एक गाने के तौर से अगर गाए कि बस गाना है, तो उसको 4 लाइन का अगर है तो वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे प्रेजेंट करते हैं वो 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं उसको ठीक से प्रेजेंट करने में। तो वो जो छोटा ख्याल होता है, छोटा ख्याल के बाद हम लोग कभी कभार तराना करते हैं या फिर छोटा ख्याल से ही परफॉर्मेंस एंड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका ख्याल गायकी का स्ट्रक्चर। ख्याल जब प्रेजेंट किया जाता है तो आलाप, उसके बाद बड़ा ख्याल, फिर छोटा ख्याल, फिर जाके तराना। तो ये कोई मैंडेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोग आते हैं वो आलाप गाते हैं, अगर शॉर्ट परफॉर्मेंस है उसके बाद छोटा ख्याल गा देते हैं, बड़ा ख्याल नहीं करते। ऐसे ऐसे स्टेज शोज आजकल ज्यादा हो रहे हैं कि बड़ा ख्याल बंद हो रहा है। कुछ बड़े दिग्गज आते हैं वो गाते हैं, लेकिन ज्यादा लोग नहीं गाते हैं। और लास्ट में तराना भी नहीं होता है। तो तानकारी होती है, और 3 ताल में ले लो, झपताल में ले लो, कुछ भी ताल में ले लो, एक छोटा ख्याल होता है, उसका स्पीड बढ़ाया जाता है, टेम्पो बढ़ता है, और लास्ट में जाके उसको खत्म किया जाता है। 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट किया जाता है। तो ये था राग का समरी। अभी ये जो इतने सारे, हाँ, इट इज सैड, इट इज इंडीड सैड, सौरभ जी। सो लेट्स टॉक अबाउट ठाट। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ठाट क्या है, या पिछले दिन मैं ठाट और वेस्टर्न क्लासिकल का एक कंपैरिजन कर रहा था, मोड्स और ठाट का। तो इसीलिए अभी मैं ठाट के बारे में बताने वाला हूँ। ठाट क्या है, बहुत सारे राग इनिशियली थे, राग बनते जाते थे, और हमारे जो पुराने टेक्स्ट है वहाँ पे भी बहुत रागों का मेंशन मिलता है। और बहुत सारे लोग राग ऐसे ही गाते थे, डिफरेंट रीजन्स में रागों का प्रचलन था। लेकिन एक टाइम आया अराउंड 14th सेंचुरी, जब साउथ इंडिया में इसका एक साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हुआ। तो पहले उसको मेल कहते थे, ठाट या मेल। ठाट बाद में नॉर्थ इंडियन ज्यादा कॉन्सेप्ट है। मेल मतलब वो ठाट ठाट जैसा ही है, एक स्केल कि इसमें कितने नोट्स है और क्या क्या नोट्स है, स्वर क्या क्या है। स्वर मतलब नोट, क्या क्या नोट्स है, इसका एक हिसाब लगाया जाए। तब जाके रागों को एक एक ठाट के अंडर लाया गया। मतलब जैसे एक फैमिली, उसमें कुछ मेंबर्स। तो ठाट इज लाइक अ फैमिली, एंड ऑल दीज रागास आर लाइक मेंबर्स विद इन दैट फैमिली। जैसे किसी का एक टाइटल हो गया शर्मा, तो सारे शर्माओं को एक जगह लाके, उससे पहले बहुत सारे शर्मा थे, अभी एक क्लासिफिकेशन होने का कि शर्मा कौन कौन से है, सारे शर्मा को लाके एक जगह खड़ा कर दो, और सारे एक ही ट्री के नीचे आते हैं। फिर जाके कोई कह रहा है कि हाँ ठीक है, कि मैं हूँ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कौन कौन है, तो ये सारे लोगों को लाके चक्रवर्ती में लाके बीच में डाल दिए। ये सब थे लोग, पहले से ही थे। लोगों को क्लासिफाई करना और एक क्लस्टर के अंदर लाना, ये साइंटिफिक स्टडी बाद में शुरू हुई। तो दिस वाज अ लेटर फेनोमेनन। रागास प्रीडेटेड ठाटास। सो राग बहुत पुराना चीज है, ठाट उससे काफी बाद में आया। तो जब ठाट आने लगे उसका बहुत टाइम गया, 14th सेंचुरी, फिर 17th सेंचुरी, आखिर में आके सो इनिशियली वी हैड 72 ठाट्स और मेल्स। फिर जाके कुछ लोग कहे कि नहीं वो बहुत ज्यादा हो रहा है, इतने राग है, फिर ठाट भी इतने हैं, तो लोग याद कैसे रखेंगे। लोग कैसे याद रखेंगे कि 72 मतलब वो याद रखना एक बहुत मुश्किल चीज है। तो ठाट तो इज सपोज टू सिंप्लीफाई थिंग्स। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जो बनाया गया है वो ही अगर कॉम्प्लेक्स है तो कैसे सिंप्लीफाई हुआ। तो इसीलिए लोग बाद में आके उसको छोटा करने लगे। देवर म्यूजिकोलॉजिस्ट जो डिसाइड किए कि इसको और छोटा करना। तो हमको बाद में क्या मिला, 32 ठाट्स। 32 ठाट्स के बाद आखिर में विष्णु नारायण भातखंडे जी, जो 19th सेंचुरी में थे, वो काफी मॉडर्न है दैट वे। तो विष्णु नारायण भातखंडे जी जिनका सिस्टम हम लोग अभी फॉलो करते हैं, वही एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट है नॉर्थ इंडियन क्लासिकल में, जो फॉलो होता आ रहा है और अभी होगा, क्योंकि वो बहुत साइंटिफिक है। और हमको मिला क्या, बस 10 ठाट। आपको अगर 10 ठाट ठीक से आ जाए
और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रागस है, मतलब जो मैं कह रहा था कि एक फैमिली है, लेकिन फैमिली का एक हेड ऑफ द फैमिली या फिर जो उस फैमिली को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा कोई, तो कोई शर्मा है जिस, और शर्मा में से सबसे फेमस कौन है, अभी कपिल शर्मा है, तो समझ लो कि यहाँ पे भैरवी है, और भैरवी में सबसे फेमस कौन सा राग है, भैरवी एक तो फैमिली हो गया, वो ठाठ है, इसमें सबसे फेमस है भैरवी राग। तो अब आपको अगर भैरवी राग ठीक से गाना आता है तो ठाठ के बारे में आपको ठीक से पता चल जाएगा। तो ठाठ में उतना इंफॉर्मेशन नहीं होता है जितना के राग में होता है। मैं राग के बारे में इतना कुछ बता रहा था, राग को कैसे परफॉर्म किया जाता है, राग का क्या वादी है, क्या संवादी है, क्या आरोहण है, क्या अवरोहण है, जैसे आरोहण में 5 नोट, अवरोहण में 7 नोट, इतने, या फिर टाइम क्या है, कब गाना है, उसकी पकड़ क्या है, ये सब डिटेल ठाठ में नहीं होते। ठाठ में बस आपको पता चलता है कि असेंडिंग में नोट्स क्या है। तो आपको अगर भैरवी बोला जाए तो आप बोलेंगे सा रे गामा पाधा नीसा, और इसमें रेगा धानी कोमल है। ठाठ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, ये याद रखिएगा सब कोई, ठाठ अच्छा सुनाई नहीं देगा। मधुर सुनाई देने के लिए आपको राग राग ही गाना पड़ेगा, ठाठ गाया नहीं जाता है। वैसे आपको अगर नोट सीखने हैं तो आप बैठ के हारमोनियम पे या फिर तानपुरे पे बस प्रैक्टिस करो। ठाठ में क्या क्या नोट्स है ये आपको पता चलेगा, लेकिन नोट का क्या चलन है, उसको कैसे कंबाइन किया जाए, कौन से नोट के साथ कौन से नोट को जोड़ने से आपको अच्छा सुनने में लगेगा, ये सब डिटेल ठाठ में नहीं होता है। ठाठ में बस आपको बताया गया कि खमाज ठाठ, खमाज ठाठ में क्या है, सारे गामा पाधा कोमल नी और ऊपर का सा। तो सारे गामा पाधा नी मतलब आपको नी खमाज में कोमल करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर खमाज राग गाने जाओ या फिर देश राग गाने जाओ जो कि खमाज खमाज ठाठ में है, तब आप देखोगे कि दोनों नी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ठाठ में कभी एक नोट का शुद्ध और विकृत दोनों यूज नहीं होते। तो आप अगर कल्याण ठाठ की बात करो जिसमें यमन है, कल्याण ठाठ में सा रे गा तीव्र मा होता है, लेकिन यमन कल्याण जो राग है या फिर बेहाग जो राग है, केदार जो राग है, ये सारे तो सब आपको कल्याण ठाठ में ही मिलेंगे, लेकिन उसमें दोनों माँ का प्रयोग होता है। तो राग में आप कर सकते हो, एक नोट का शुद्ध कर सकते हो, विकृत कर सकते हो, लेकिन ठाठ में ये सब नहीं होता। तो अभी ठाठ की जानकारी देने के लिए आप अगर नोट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। पहला जो ठाठ है वो है बिलावल, उसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं, सारे गामा पाधानी, एक के बाद एक, ये 7 नोट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें औरव सारव नहीं होता है, ये संपूर्ण ही होता है। 7 नोट का हिसाब होता है, ये 7 नोट असेंडिंग में कैसे आते हैं बस यही बताया जाता है, दूसरा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बिलावल ऐसा है जिसमें सा रे गा मा पा धा नी, ये बिलावल है। तो मैं गा के बताता हूँ, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर दूसरा ऑक्टेव सा। तो 7 नोट का अगर है तो आप सा से नी तक बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है कल्याण। कल्याण में क्या है, सिर्फ माँ तीव्र होता है, बाकी सारे शुद्ध नोट है। सा रे गा, देखो माँ तीव्र हो रहा है, मा पा धा नी, ये हो गया कल्याण ठाठ। इसके आगे जाके आपको मिलेगा खमाज, उसमें भी विच राग कम्स अंडर विच ठाठ। हाँ ज्ञानदीप, राग ठाठ के नोट्स जो है, क्या नोट्स है, जैसे मैंने अभी बताया कि कल्याण में आपको मिलेगा कि माँ तीव्र होता है, तो ये देख के जो सारे राग ऑलरेडी है उन रागों को प्लेस किया गया इस ठाठ के अंदर जिनमें तीव्र माँ का यूज हुआ है। ओके सर, ये सी स्केल था, हाँ ये सी स्केल था। फिर जाके हम खमाज करेंगे। खमाज में नी कोमल होता है, बाकी सारे नोट शुद्ध होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, कोमल नी, ठीक है। फिर भैरव करते हैं। एक ठाठ में कितने राग हैं, बहुत सारे होते हैं, एक राग में बहुत सारे हैं, ऐसे कोई फिगर नहीं है। यस श्रीजीत, दैट इज मिक्सोलिडियन, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो मैं पिछले दिन बता रहा था, लिडियन, मिक्सोलिडियन, बाकी सारे जो मोड्स है, मोड्स का डिस्कशन मैं पिछले दिन कर रहा था। अभी
एक और क्लास लेनी है उस पे, ठाट और मोड्स का कॉम्बिनेशन करेंगे फिर से। तो भैरव लेते हैं अभी। भैरव में रे और धा 2 नोट कोमल होते हैं, ठीक है। सा रे गा मा पा धा कोमल धा नी सा। ये जो मैंने अभी गाया ये भैरव ठाट था बस। भैरव राग अब जब गाओगे ऐसे नहीं गाओगे, सारे गामा पा धा नी सा भैरव राग में नहीं होगा, तब नोट्स को छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। गामा धा नी ऐसे करके कोई और सिस्टम है उसमें, तो ऐसे सारे गामा पा धा नी सा भैरव राग में कब कतई नहीं होगा, ठीक है। अभी उसके बाद हम लोग करेंगे काफी। काफी में जैसे भैरव में था रे और धा, काफी में है गा और नी कोमल। कैसे है? सा रे ग म प ध नी सा, ठीक है। सा तक नहीं जाना है, नी तक जाने से ही आपका ठाठ कंप्लीट होता है। फिर अभी 3 नोट कोमल करेंगे, तो आशावरी में जाएंगे हम लोग। माइनर स्केल जिसको कहते हैं, जो नेचुरल माइनर है वो आशावरी है। सा रे ग कोमल गा है, म प धा कोमल धा है, नी सा, ठीक है। तो गा धा नी ये 3 नोट आपको कोमल मिल गए, तो आपको आशावरी मिल गए। इसके आगे जाके आपको मिलता है मारवा। अभी मारवा थोड़ा डिफरेंट सुनाई देगा। मारवा में क्या है? सा कोमल रे, ओके, कोमल रे है और तीव्र मा है। सा रे ग म प ध नी, ये मारवा है। फिर से आपको अगर 3 नोट के 3 नोट विकृत करके कुछ मिलेगा तो आपको पूर्वी मिलेगा, ठीक है। सा कोमल रे गा तीव्र मा पा कोमल धा नी। तो इसमें क्या था? मारवा, मारवा के बाद पूर्वी, रे, मा और धा, ये 3 आपको विकृत मिलेंगे। फिर जाके मिलेगा टोड़ी। बहुत खतरनाक चीज है टोड़ी में। बहुत बहुत सारे ऐसे राग है जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स है, जैसे मियाँ की टोड़ी हो गए, गुर्जरी टोड़ी हो गए, बहुत सारे वेरिएंट्स है टोड़ी के। और टोड़ी में क्या है? सा रे ग म प ध नी। सो रे, गा, मा एंड धा, ये 4 नोट विकृत है, शुद्ध नहीं है। सो रे कोमल, गा कोमल, तीव्र मा और कोमल धा। और लास्ट में भैरवी है। भैरवी में रेगा धानी 4 कोमल नोट है। सा रे ग म प ध नी, ठीक है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे जाके हमको खत्म करना है। ये जो ठाठ मैंने बताया एक भी राग नहीं है, ये सारे ठाठ है, इसमें बस ये नोट्स है, ठीक है। क्या क्या नोट है ये पता चलता है ठाठ से, और कुछ पता नहीं चलता है। बाकी सॉरी टू सारे जो, इंटरप्ट यू हाँ बताइए। सर, जिनके पास हारमोनियम नहीं है, तानपुरा का क्या, तानपुरा हमने डाउनलोड कर रखा है, उसमें सारे गामा सी मेजर है, तो उसमें हाँ, जाएंगे कैसे सर? आप एक पियानो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सर वो भी उसमें, कर रखा है। हाँ, पियानो ऐप में जो सी मेजर स्केल है, जो सारे वाइट नोट्स है, हाँ वो जी, आपको शुद्ध शुद्ध स्वर मिल रहे हैं, ठीक है। और सी अच्छा, और डी के बीच में जो नोट है, जो काला नोट है, हाँ वो जी, आपका कोमल रे है। उसके बाद वाला जो काला नोट है वो आपका कोमल गा है। उसके बाद वाला जो 3 काला नोट का जो क्लस्टर है, उसमें पहला वाला काला नोट आपका तीव्र मा है। फिर अच्छा सर, दूसरा वाला काला नोट जो तीन तीन काले नोट्स में सेकंड है, वो आपका कोमल धा है। और उसके बाद वाला कोमल नी है। और बाकी सारे जो आपके सफेद वाले हैं, जो सी डी ई एफ जी ए बी है, ये सारे गामा पाधा नी है आपके। तो इसमें आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप बिगिनर है तो आप तानपुरे पे ऐसे कर नहीं सकते हो, आपको पहले पता होना होगा कि ये जो हम नोट्स बजा रहे हैं वो सुन के कैसे लग रहे हैं। सा रे ये आपको गले पे बिठाना है ठीक से, सा कोमल रे ठीक से समझ के गले पे बिठाने के बाद तानपुरे पे कोशिश कीजिए, वरना आप गलत नोट गा के प्रैक्टिस करोगे और वो बैठ जाएगा, तो वो बहुत रिस्की है।
सर जैसे हमारे पास हारमोनियम नहीं है तो हारमोनियम लेने की जरूरत है नहीं है हमें सर। कोई जरूरत नहीं है, आप आपके पियानो आप पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सर हारमोनियम उसे कॉस्टली सही चीज ढंग है। से। आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पहले पैसा खर्च मत करो, पहले प्रैक्टिस करो। आपको अगर उसकी लत लग जाए, जब जब मजा आने लगे कि हाँ अभी रियाज करना है 5 घंटा 7 घंटा, जब मजा आने लगे, जब आपको म्यूजिक उतना प्यारा लगने लगे, तब जाके पैसे खर्च करो। मैं तो सर पैसे सर किसी को प्रैक्टिस के लिए रेकमेंड नहीं प्रैक्टिस के रेकमेंड लिए नहीं कुछ करता। बताइए इतने ना, का। जो डेली डेली क्या प्रैक्टिस किया जाए, कैसे किया जाए, वो उसके लिए थोड़ा बताइए ना। हाँ, अभी अभी क्या है, ये जो ठाट है ये वेस्टर्न में जो स्केल होता है वैसा ही है। इसमें कोई रूल नहीं है कि नोट्स को कैसे कंबाइन करे, एक के बाद एक कौन सा नोट आए, कोई बात नहीं है। बस एक मतलब क्रोनोलॉजिकली सारे गा मा पा धा नि सा ऐसे ऊपर जा रहा है। कोई नोट इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई नोट मिसिंग है, किसी को छोड़ के ऊपर जाना है। तो पहले इसका रियाज कीजिए, बिलावल कीजिए, कल्याण कीजिए, खमाज कीजिए, ठीक है। 3 3 करके ठाटों का या 2 2 करके ठाटों का रियाज कीजिए, जैसे कि सा रे ग म प ध नि। अभी इसका आप वापस भी कर सकते हो, सा रे ग म प ध नि सा रे ध प म ग रे सा, ऐसे कर सकते हो। फिर आप सोचो कि भैरव का ले लिया, जिसमें 2 विकृत नोट है, रे अधा, सा रे ग म प ध नि सा ने ध प म ग रे सा। तो सर अपने अपने कल्याण तो राग भी होता है ना सर? यमन कल्याण, हाँ कल्याण का एक राग फॉर्मेट भी है, लेकिन कल्याण का जो राग है वो एक्चुअली कल्याणी है। वो साउथ इंडिया में यूज होता है, नॉर्थ इंडियन में उसका प्रकाश जो है वो यमन राग से ही है। तो कल्याण नाम का नॉर्थ इंडियन कोई राग नहीं है। सर ऐसा कोई थाट बताइए जिसका मतलब राग ना हो, सिर्फ थाट हो, तो वो वो सारे रागों का वो जो नामकरण किया गया है, पहले ही तो अच्छा। राग थे ना। तो राग में जो रिप्रेजेंटेटिव राग मिला, जो जो उस राग को सबसे सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि आशावरी। आशावरी राग अगर आप ठीक से गा सकते हो तो ठाट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे मैंने बताया ना कि शर्मा में से सबसे फेमस कौन है, तो अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर गए तो उसी को पकड़ के आप बाकी बाकी रागों को भी थोड़ा थोड़ा समझ सकोगे। तो इसीलिए ठाट का, हर एक ठाट का एक्सेप्ट यमन, जो कि कल्याण का रिप्रेजेंटेटिव राग है, सर हर एक ठाट हारमोनियम का। लेने की जरूरत है सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सर आप कि इतने का सर इतने का आता है सर हारमोनियम। हारमोनियम 5 6 हज़ार से शुरू होता है, और ऊपर का लिमिट तो 40 50 हज़ार तो हो ही जाता है। इतना महंगा है सर। हाँ, स्केल चेंजिंग ले लोगे तो 25 30 हज़ार से नीचे तो नहीं मिलेगा। अच्छा और ऊपर। हाँ, ऊपर आप थोड़ा वो नेट पे चेक कर लीजिए, आप आपका जो लोकल सेलर है उससे थोड़ा बात कर लो, ठीक है। सर आई हाँ, वांट टू आस्क यस। समथिंग। माही दिस साइड। सर प्लीज क्या आप मेरे को ये बता सकते, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जब मतलब खर्च का रियाज करता हूँ तो आप मेरे को तो थोड़ा सा एक बार मतलब एक चीज बता देंगे कि आप मतलब इस फॉर्मेट में खर्च का रियाज कीजिए, क्योंकि अभी बेसिकली मैं मतलब वो उसी का करना चाहता हूँ, और मेरा मतलब है भी सही कि मेरे को सिर्फ खर्च का ही करना है अभी अगले 1 साल 2 साल। तो आप बहुत मेरे को बढ़िया एक है। थोड़ा प्रॉपर अगर कुछ वे में कुछ बता सकें तो सर थैंक यू। दैट्स वेरी गुड कि आप खराज के रियाज पे इतना ध्यान दे रहे हो और इतना टाइम देने की सोच रहे हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो नीचे का नोट्स होता है वो नोट्स हमारे आवाज को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगर उसका रियाज सही तरीके से हो गया तो आवाज आवाज का जो नेचर है वो प्रोजेक्ट होता है सही तरीके से। तो आप अगर ऐसे सा नी ध पा मा पा धा नी सा ऐसे एक ले लो। इसके बाद आप क्या करोगे, आप कोई भी ठाट ले लो जिसमें आपका, आप पहले सोच सकते हो कि मुझे अभी खमाज का करना है, तो नी आप कोमल बना दो। तो फिर ऐसे करो, सा नी धा नी सा। फिर आप एक नोट उसको नीचे की तरफ और एक नोट बढ़ाओ, सा नी धा पा धा नी सा। ठीक है, एक एक करके नोट नीचे की तरफ जाते रहो, क्योंकि सी मेरा स्केल नहीं है, मेरा स्केल एक्चुअली डी है। तो मेरा गा तक कंफर्टेबल रहता है। तो मैं यहाँ पे गाता हूँ, आ रे ना र र र र र र। ये थोड़ा केदार का छोटा सा था।
म प ध म नि ध सा नि सा नि ध प म प ध म र सा सा म म प म प ध नि सा नि ध प म प ध म र सा। तो ये जो मैंने मिडिल ऑक्टेव में किया, आप देखिए कि आपका नीचे तक कहाँ पे जाता है। तो कोई भी राग ले लो या फिर कोई भी ठाट ले लो, वो जो नोट कॉम्बिनेशन है, एक एक करके नोट आप जैसे सानी सा, सानी धानी सा, पहले शुद्ध नहीं करके करो, फिर कोमल नहीं करके करो, फिर सर शुद्ध 2 को मिनट लूंगा कॉम्बाइन सर। करो, सर ऐसे आपने जो करके रियाज खमाज करो। खमाज अभी लिया था कि आरो अवरोह तो अलग है सर, ठाट के भी? ठाट के आरोह आरोह अवरोह ऐसे नहीं होता है। ठाट में बस कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स एक आरोह होता है। ठाट में ऐसा नहीं होता है कि आप जाने के टाइम पे एक सेट ऑफ नोट्स लो और वापस आने के टाइम में दूसरा सेट लो, ऐसा नहीं होता है, वो फिक्स्ड है। तो खमाज राग में क्या होता है, आप जाने के टाइम पे, ऊपर जाने के टाइम पे आप शुद्ध लगाओगे, कि नीचे आने के टाइम पे कोमल लगाओगे, ऐसा कर सकते हो कि देश गा रहे हो तो देश गाने के टाइम पे आप शुद्ध नी लगा के वापस आने के टाइम पे आप कोमल नी लगाओगे, ये राग का रूल है। लेकिन ठाट में ऐसे रूल्स नहीं होता है, वही मैं बार बार दोहराता हूँ। एक्सक्यूज मी और सर। सर Yes. ये विष्णु जी का नाम आपने, एक मिनट सर, विष्णु जी का नाम जो बताया था वो कंप्लीट नाम बता दीजिए सर प्लीज। विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। Yes, there was somebody, भातखंडे। भातखंडे, BHATKHANDE. ओके सर, थैंक यू। Okay. सर हेलो 2 सर। मिनट लेंगे सर। Yes. सर एक सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग मान लीजिए कोई सॉन्ग गाते हैं या कोई भी बंदिश गाते हैं, तो उसमें हम एक लाइन डिफरेंट तरीके से कैसे गा सकते हैं? इसके लिए हर आपको बार राग की चलन आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब सोचो कि ए मोरे गगरना भरन देता, मोरे गगरना भरन देता। अभी इसका दूसरा चलन क्या कर सकते हो आप, राग में रहना है, राग के बाहर नहीं जा सकते हो। ए मोरे गगरना भरन देता कर सकते हो। तो आपको राग की समझ होनी चाहिए। आपको अगर राग का क्या चलन है, उसमें जो नोट्स है वो कैसे एक के बाद एक आते हैं, जी सर। उसका सर उसके कॉम्बिनेशन लिए कैसे, हाँ उसका क्या रियाज कॉम्बिनेशन। करना चाहिए? रियाज ये है कि राग का जो आप जिनके पास भी जाते हो सीखने के जी लिए, सर। उनसे आप ताने लो, बहुत सारे ताने लो, और अब तान से ही आपको पता चलेगा। पहले तो आरोहण अवरोहण आपको सही तरीके से आना चाहिए, उसमें से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आरोहण अवरोहण और पकड़, ये तीन अगर जी आपको ठीक से पता चल जाए तो आप इसके बाद इम्प्रोवाइज कर पाओगे। जब आपके पास बहुत सारे तान होंगे, तो आपके पास अगर 10-20 तान है, तो उसी को तोड़ के आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि बोल तान जब हम करेंगे, मतलब इसको जब बढ़ाएंगे, एक गाने को जब हम लोग ट्विस्ट करके दूसरा एक नोट कॉम्बिनेशन करेंगे, तो राग से बाहर ना निकले, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राग में ही रहना चाहिए। कितने खड़े रहेंगे? ओके सर। ओके। हेलो यस। एक ताने बता दीजिए। यम रियाज करते हैं ना, हाँ। वो नीरे कमला नीरे सा नीरा पमा रे सा, ऐसा Very होता nice. है ना। बहुत बहुत लोगों को मैंने ऐसा सुना कि वो लोग सा से स्टार्ट करते हैं, और हाँ। वो लोग अभी बहुत लोग मुझे यही पूछा। मैं 17 साल श्रुतिनंदन में पंडित जयदेव चक्रवर्ती के वहां से ट्रेनिंग ली, तो बहुत बढ़िया अभी है। वो लोग मुझे पूछते हैं कि क्यों गलत क्या है, तो मतलब कि सा से क्यों ना शुरू करूं, तो इसका कोई ऐसा कुछ ऐसा है कोई? ये मैं भी एसआरए में बहुत साल गया था, मैं मशकूर जी और अरशद जी के स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो अभी वहाँ पे भी ये डिस्कशन बहुत होती रहती है, और गलत कुछ भी नहीं है, ये एक ट्रेडिशन की बात है, क्या अच्छा लगता है और क्या होके आया है। क्योंकि ये क्लासिकल म्यूजिक है, सनातनी म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, मतलब ये फ्लो होके आ रहा है बाय डाउन द जनरेशंस। तो हर आप अब तो पटियाले घराने से ताल्लुक रखती हो, तो पटियाले में जो बड़े दिग्गज थे वो ऐसे ही करते थे, इसीलिए आपके टीचर भी ऐसे ही सिखा के गए आपको, वो तो उससे बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये गुरुमुखी विद्या है। सर कोई बेसिक तान, जो सबसे बेसिक तान है वो बता दीजिए। तो नीचे ही होता है ना? हाँ नीचे होता है, नी रे ग म ध नी रे सा नि ध प म ग रे नी रे सा,
ने दा नि रे गा रे नि रे सा ने दा नि रे सा गा रे सा रे नि सा ने दा नि रे सा, ऐसे होगा। तो आपको अगर सा रे करना है तो वापस आइए, नि रे गा मा, ठीक है, सा रे नि सा करिए, सा रे नि सा नि रे गा मा, ऐसे उठिए। तो जब भी आपको तो आप यू टर्न ले लीजिए। अगर आपको ऐसा है कि नि रे गा मा करना है और सारे गा मा आप नहीं कर सकते, तो सारे करके आप वापस चले आइए, मुड़की ले लीजिए। आरोही में नहीं जाता है वैसे, हाँ नी के हाँ, बाद। हाँ नी के बाद नहीं जाता है, नि रे गा रे नि रे सा नि दा नि रे गा रे नि रे सा, ऐसे जाता है। सर कोई बेसिक तान के बारे में बताइए, जो बच्चों से एक क्वेश्चन बेसिक। पूछ रहा था। हाँ, बेसिक तान, बेसिक Yes, तान sir. तो आज नहीं करेंगे, आज बस ठाट पे रहेंगे। आप ठाट का प्रैक्टिस कीजिए। ठाट का नोट्स जो है, एक एक ठाट का नोट गले में बिठाने के लिए सालों लग जाते हैं। ये इतनी आसान बात नहीं है। तो हम खुद कर रहे हैं, 25-26 साल से सीख रहे हैं, अभी भी सीखे जा रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी भी लगता है कि कुछ आता नहीं है, तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना है कि सर आप इतने सालों से सीख रहे हो, आपका कुछ आ नहीं रहा होगा सर। हमें तो एक शब्द भी नहीं आता है सर। सर जो आप बताते हैं ऑनलाइन वही सीख रहते हैं हम तो। उतना ही जितना हमारे गुरुओं को आता है, उनसे कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं आता है। तो नहीं जिनसे सर, सीख रहे हैं बस उनसे सीखते रहिए, चरणों में पड़े रहिए, वही बहुत है। सर यहाँ पर कोई सिखाने वाला नहीं है ना यहाँ पर। तो आप क्लासेस अटेंड करते रहिए, जितना मुझसे हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। सर एक बात है सर, तानपुरा ड्रॉइड पे सर वो स्केल कैसे लेनी है सर? तानपुरा ड्रॉइड पे आपको 2 नोट्स बहुत जोर से आता है। तानपुरा ड्रॉइड बहुत अच्छा ऐप नहीं है, मतलब आई तबला प्रो जो एप्पल पे आता है वो अच्छा तानपुरा ऐप है। तो तानपुरा ड्रॉइड पे आपको वो वॉल्यूम थोड़ा एडजस्ट करके देखना होगा, सा और दूसरा जो अकम्पनिंग नोट है कि वो पा जा रहा है कि मा जा रहा है, उसको पा ही रखिए आप। हाँ, तो उसको आप स्केल अपने हिसाब से देखिए कि आपका सबसे ऊपर वाला नोट क्या लग रहा है, वो आपका ऊपर का गा या मा होना चाहिए। और फिर 1 2 3 4 सेमीटोन नीचे करके, टोन्स नीचे करके आप आपका सा सेट कर लीजिए। तो आप अगर मेल है, एंड्रॉइड के लिए कोई ऐसा ऐप है क्या? ध्वनि तानपुरा इज स्लाइटली बेटर देन तानपुरा ड्रॉइड। कौन ध्वनि सा? तानपुरा, ध्वनि तानपुरा, सर आईशाला इज आल्सो बेटर। आईशाला इज बेटर, बट भी दैट्स अ बहुत पेड सही है। ऐप। हाँ, आईशाला पेड ऐप है। नहीं तो सर, वो मिल जाता है सर, मतलब उसमें क्रैक फाइल मिल जाता है गूगल पे उसका। क्रैक वर्जन, हाँ। वो मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता कि क्रैक कर लो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगले दिन मिलते हैं, 2 या 3 ठाट लेके बैठेंगे, उसमें कुछ नोट कॉम्बिनेशंस करेंगे, उसका एक रियाज का पैटर्न बनाएंगे और एक एक राग शुरू करेंगे। सर सबसे पहला थाट कौन सा करना है? बिलावल और कल्याण कीजिए। ठीक है सर। मैं बोल रही थी आपका नंबर थोड़ा दीजिए। मैं कभी थोड़ा बिजी रहती हूँ, कभी एक आध समय आपका कोई जरूरत के बारे में फोन करूँ तो कोई हेल्प आपका टाइम होगा तो तभी आप हेल्प कर दीजिएगा सर। ठीक है, 7003946426। एक मिनट फिर बोलिए। 7003946426। 3946 426। थैंक यू। 7003946426। करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस तो नमस्ते सर। आप जो क्लास कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड क्या यूट्यूब में सेव रहता है? it will be uploaded. You can check it tomorrow evening. आपका प्रीवियस क्लास का वो नहीं मिल रहा है इसीलिए। It's uploaded by tomorrow evening. You can check it tomorrow. Sorry sir. You can check it tomorrow evening. The front row backend team will upload it. You can check it tomorrow evening. Thank you. Okay. Okay. Thank you. So we'll end it here. सर आपका वो सृजनो छंद मैं सुनी थी उस दिन फेसबुक पे। सर कल कौन से राग करेंगे, कल कौन से थाट करेंगे हम लोग? सर आपका फोन नंबर क्या है सर? सर यहाँ पे चैट पे किसी ने लिख दिया है 7003946426। 70 क्लास होता है ये वाला? ये मंडे को हम लोग करते हैं। सर 70 मंडे 5 o'clock हम लोग करते हैं। एवरी मंडे? एवरी मंडे जनरली 7003946426। और YouTube चैनल भी यही है सर, फ्रंट रो वाला ही? हाँ, फ्रंट रो सिंगिंग कम्युनिटी ऐसा एक चैनल है, वहाँ पे जाके देखिएगा, आपको मिलेगा।
ठीक सर है, कल ओके कौन देन। से थाट करेंगे हम लोग? सर कल कौन से थाट करेंगे? बिलावल और कल्याण लेके बैठेंगे, या फिर बिलावल, कल्याण और खमाज, ठीक है? कल या नेक्स्ट थैंक यू सर। कल नहीं, नेक्स्ट मंडे। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय, थैंक यू।